हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक आर्टिकल आया है, इंडो पैसिफिक चाइना मैप्स ऑन एजेंडा एज पीएम लीव्स फॉर जकार्ता। तो हमारे पीएम जकार्ता जा रहे हैं, वहाँ पे शायद ये इशू डिस्कस होगा। चाइना का जो स्टैंडर्ड मैप, सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मैप चाइना ने निकाला है, देखते हैं क्या है। फ्यूचर कोऑपरेशन ऑन इंडो पैसिफिक ट्रेड इशू, the situation in Myanmar and the recent controversy over China's map are likely to be on the agenda as Prime Minister Narendra Modi leaves on Wednesday for a two-day visit to Jakarta to attend the annual ASEAN Indian Summit and East Asia Summit hosted by Indonesia President Joko Widodo। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जकार्ता जो है ये आपका इंडोनेशिया का आइलैंड है, कैपिटल है। आगे देखते हैं। The visit is seen as a diplomatic gesture to Indonesia, as Mr. Modi was originally reluctant to travel just before the G20 summit and the arrival of US President Joe Biden, to Delhi, whom he is scheduled to meet on Friday, as well as other G20 leaders. However, after India conveyed its concern, Indonesian officials rescheduled both summits to be conveyed back to back on Thursday morning, with the with only a short break in between। मतलब इनके रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने मीटिंग आगे पीछे नहीं की, तुरंत ही एक ही बार कर दे रहे हैं ताकि इनको वापस में इंडिया में रहने का टाइम मिले। During the ASEAN India Summit, the first since the two sides upgraded their relationship to a comprehensive strategic partnership in 2022, Mr. Modi will review progress on issues such as strategic cooperation and military exercise as well as connectivity, including physical, digital and people-to-people ties. ठीक है? He said that while ASEAN-India trade ties would be reviewed, plan to revise the ASEAN-India trade in goods agreement would be taken up by ministerial dialogue. Asked if recent controversy over China's publication of map that angered India and several other neighbors could also come up, Mr. Kumar was non-committal. It is difficult to anticipate what will be discussed when the leaders meet, but issues which are mutual concern, regional and international, would all come up in discussion. Whether there would be a consensus, I cannot anticipate, he said. Mr. Modi will begin the day on Thursday with the ASEAN India Summit with the leader of 10 Southeast Asia countries, of which Vietnam, Philippines, Indonesia, Malaysia, and Brunei all have issued statements conveying concern over China's depiction of their territory in the Standard Map. So-called Standard Map 2023 is sued last week as India had. He will then attend East Asian Summit with leaders of the ASEAN 10, US Vice President Kamala Harris, Chinese Premier Premier Li Qiang, and the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. He will return to Delhi the same day, ahead of the arrival of G20, many of whom will fly from Jakarta. While Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, and Mexican President Andres Manuel Lopez have regretted their attendance at the summit in Delhi on September 9 and 10, various health concerns threw uncertainty on Tuesday over US President Joe Biden, German Chancellor Olaf Scholz, Brazilian President Luiz, all of whom have confirmed their participation। इस आर्टिकल में देखते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई भी आर्टिकल पूरा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये, उस आर्टिकल में हम ये न्यूज़ नहीं आ रहा है, हमें पता होना चाहिए अब इसमें क्या हमारे लिए उठा सकते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले इंडोनेशिया, जकार्ता, आसपास का उसका जितने आइलैंड्स है आपको पता होगा, जैसे जावा है, तो ये जितने भी अदर आइलैंड है, आप वो सारे इंडोनेशिया के आइलैंड्स के जैसे ऐसे बने हुए हैं, ये सारे पता होने चाहिए, इनके लोकेशन पता होने चाहिए, कहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो है, कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है, ये पता होना चाहिए। अब देखिए, आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही है पता होना चाहिए हमें। G20 बहुत दिनों हर आर्टिकल में रिपीट होता है G20 के, अब इसके बाद भी अगर कोई ना करे तो उसमें उस आदमी की गलती है।
G20 की वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है, और एज सच इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। आसियान 10, आसियान यही है बस। और आसियान 10 और आसियान आप बताइए एक ही है कि अलग अलग है? मुझको एक आप इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ था, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2022 ये किसके बीच में है और क्या इसके इम्प्लीकेशन है? खैर किसके बीच में है वो तो हमने यहाँ पे देख ही लिया कि ये चीज़ आपका हो जा रहा है आसियान और इंडिया समिट। ये आसियान और इंडिया के बीच में है, ये चीज़ हमें पता तो चल जा रहा है, पर इसके क्या इम्प्लीकेशंस है इसको आपको बताना होगा। मत बताइए पर आप पढ़िए। तो थैंक यू एंड प्लीज़ ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं पर इसको नहीं छोड़ सकते। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस आर्टिकल का जिस्ट यही है। हमें डेली बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं सुनना, ये वो है कि क्या हो रहा है उसके बारे में ये है। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। कभी ये नहीं पूछेगा क्या मोदी गए थे, मोदी के कहने पे उन्होंने मीटिंग ऊपर नीचे की थी, नहीं ये सब चीज़ें नहीं पूछेंगे वो पूछेंगे उसके बारे में, जावा कहाँ है, जकार्ता कहाँ है, आसियान और आसियान 10 में डिफरेंस है कि नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स पूछ दिया तो क्या करोगे, ये चीज़, और है तो क्या है। तो ये चीज़ पूछते हैं, कभी भी आर्टिकल ऐसा नहीं पूछते हैं टाइम टू टाइम कमेंट्री, भाई अब क्या हुआ तब क्या हुआ। इसलिए इसको प्लीज़ डोंट इग्नोर, इसको बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए, गूगल करिए हर एक चीज़ को, तभी आप करंट अफेयर से टच में रहेंगे। सो थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।